Hello everyone. Today on 22nd May 2021, we are celebrating International Biodiversity Day. And on this day, to participate, I have written one poem and have taken part in the competition Kavinjali. I hope you all like this poem. The title of the poem is The Painful Truth. The cubs implored their mother to take them for forest adventure, but she had to unwillingly deny, because out there were dawdling devils in disguise. Mama Tigress then started to explain, "We cannot go out today, because for those cruel hunters, we are the prey. They might try to take you away. We cannot speak for ourselves, so they treat us like their slaves. Those are people with devilish smiles, who are born cruel and are black-billed. Their merciless hands cut the trees and demolish our lands, obliterate the nests of birds, and maltreat Mother Earth. The cruel hunters trap cubs in nets, takes them away from their parents, locks up in cages and dispatch on boats, use their skin to make expensive fur coats. When will they understand? I know not, but I will try. We never get apart." Then the cubs slept with Mama, safe and sound, hoping no harsh hunter comes around. By Ananya Tiwari. Thank you so much. Myself Anushka. I study in class 9th in GIC Nagini Tiri Gadwal, and I would say about biodiversity. So here goes the poem. All around myself, where I can breathe. Lovely green trees all time gives us breeze. Fields of green, now fields of doom. Oh, how I hope my child can be true. Nature is my house, I will keep it nice. All around us, all the animal birds, all have right to occupy it there. So have some pretty on them, and let them to be live. Rivers of life, rivers of death. When I with it can't my forest are where animals can bird, but trees are all gone because of greed. Tonight destroy beautiful nature. God gives us God gave us a prize. Otherwise, one day you have to purify it when nature will make you destroyed. Thank you for watching and please save the nature. Hi everyone, I am Anushka. I will recite you a small and beautiful poem based on nature and wildlife. Save nature saves, learn to be brave. Trees are our gems, don't cut their stems. Treat animals with care, or the earth will be bare. If you have them, give them grain. If you have money, give them honey. If you have a home, let them freely roam. Save nature saves, learn to be brave. Thank you. नमस्कार, मेरा नाम श्रेया मिश्रा है और आज मैं स्वरचित कविता मासूम स्वप्न आपको सुनाने जा रही हूँ। काश होता वह ज़माना जब जादू होता हमारे हाथों में, धरती पर से हम कभी उड़ पाते खुली हवाओं में। इस छोटी सी आयु में हम ढाल बन जाते, प्रकृति एवं समस्त जीवों की सुरक्षा हम अपने दम पर कर पाते। यूं समझाते लोगों को कि तुम भी लो माथा टेक, प्रकृति के कण कण में ईश्वर के हैं रूप अनेक। कुछ ऐसा कर जाते कि समस्त जीव हमसे बात कर पाते, अपने निष्पाप भावों को वो बड़ी सरलता से व्यक्त कर पाते। जीव मानव के रिश्ते को इतना गहरा कर जाते कि उन जीवों के आंसू हमारी आंखों से बह पाते। ना होता प्रदूषण, ना होती पेड़ कटाई, जलचर थलचर ना नवचर को होती कोई कठिनाई। ये सपने आंखों में लेकर मैं अब तक जीती आई।
जादू का तो पता नहीं, पर एक तरकीब लगाई। सोच लिया बारी बारी एकता पूर्वक सबको जगाना है। कहीं देर ना हो जाए ऐ मानव, सबको एहसास दिलाना है। कहीं देर ना हो जाए कि हम सब पछतावे के काबिल ना हो। उस राह को सींच कर भी हमें वहाँ कुछ हासिल ना हो। धन्यवाद। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर पवन कुदवान इस दिवस पर पर्यावरण से संबंधित अपनी यह कविता प्रस्तुत करता हूँ। आसमां धरा निहारता, सोचता फिर यह कहता, बहुत खूब हुआ जो मैं दूर इतना खड़ा हुआ। बहुत खूब हुआ जो दूर मैं इतना खड़ा हुआ। नभ के सितारों की महफिल में रवि साथ देता, रात में चांद बहुत अपना लगता। रात होते हुए भी रात उजियारी लगती, रात होते हुए भी रात उजियारी लगती। जब साथ बहुत प्यारा होता, अंधेरा भी अपना लगता। धरा आभूषणों से सजी रहती, सुंदरता कहीं और दिखती। गोद में जिन्हें खिलाया वही गोद उजाड़ रहे। धरित्री रोती, धरित्री रोती, बिलाप अपनों पर करती। आसमां की ओर निहारती और कहती, तू दूर खड़ा ही रहना, तू दूर खड़ा ही रहना। सूरज चांद तारों से प्यार करना। मानव यहाँ लालच में खड़ा है, छाती मेरी फाड़ता। पथ आगे का उसमें ढूंढता, नभ में उड़ान भरकर चांद को अपना चुका है। नभ में उड़ान भरकर चांद को अपना चुका है। दौड़ अब मंगल पर लगा रहा, अपना समझकर समझा रही हूँ। अपना समझकर समझा रही हूँ। समझ जरूर जाना, पास धरा के कभी मत आना, पास धरा के कभी मत आना। समस्याएं केवल इंसानों की नहीं होती है, सभी प्राणियों के अपने अपने समस्याएं होते हैं। एक तूफान के आ जाने से जैसे एक मनुष्य का घर टूटता है, बिखरता है, उसको क्षति पहुंचती है, उसी प्रकार कई जीवों को भी क्षति पहुंचती है। इसी विषय में मैं एक कविता पेश करने जा रही हूँ। तिनकों से बना घर। पेड़ों की टहनियों पर है असंख्य पक्षियों का घर। तिनकों को जोड़ जोड़ कर उन सब ने रहने के लिए घर बनाए थे। लेकिन अकस्मात एक तूफान के आ जाने से सारे तिनकों के घर टूट गए। अगली सुबह को फैला यह समाचार, टूटे हैं कई वृक्ष, सड़कों का है बुरा हाल। वृक्षों को हटाए जाने की हो रही है व्यवस्था, ताकि सुधर सके इंसानों की वर्तमान अवस्था। तिनकों से बना घर भी बिखरा है जमीन पर, लेकिन कौन सोचेगा या लेगा इसका खबर।